I'm very thrilled and very pleasurable moment it is for us that we have you here. Sir, I'd like to start this session, and we have divided this session in almost 4 to 5 categories in which we will be going to explore university and its campuses, admission process and requirements, intakes plus its deadlines, visa support and accommodation system for students. Okay. So first of all, let me tell you about University of Hull with their London campus. Basically, University of Hull also does recruit students directly for their Hull campus, but for their London campus, they recruit through CEG, Cambridge Education Group. So anyone who is interested in going to their London campus will always be recruited through CEG. It's very simple. We have, at the moment, we have 5 courses. We were running 4 courses earlier on, and we have recently introduced MSc Healthcare Management as well, which is a new course. And I'm sure that we have a lot of students from Pakistan, from the South Asian region, who would be interested in learning more about healthcare management. And it's a conversion course, so you don't necessarily have to have a background in healthcare, or you don't have to be a doctor or a pharmacist or any of that sort. Anyone who wishes to explore healthcare management can apply for this course. Apart from this, we have MSc Business Management, we have MSc Logistics and Supply Chain Management, and we also have Logistics, MSc Digital Marketing and Advertising. And one course which is very different is MSc AI and Data Science, which not many universities are offering, because AI is offered separately and data science is offered separately. But Hull London is giving you an opportunity in the heart of the UK, London, with AI and data science together. So as far as AI and data science is concerned, that is priced at £18,000. That is the fee. And the automatic scholarship that every Pakistani student gets is £2,000 on that. So the fee comes down to £16,000. Whereas the rest of the 4 courses have been priced at £17,000, and they also have a straightaway discount of £2,000, and it brings them down to £15,000. If any student wishes to pay the fee upfront, then they will get a further discount of £1,000, which means that the fee can come as low as £14,000 if they wish to pay the full fee upfront. The entry criteria is very simple. Apart from AI and data science, all 4 courses, the IELTS requirement is 6 with no less than 5.5, and it's equivalent in the alternative test as well, because we also accept Oxford International Language Cert and TOEFL and PTE, and their equivalents will be shared with SMI consultants. Anyone who wishes to know will tell you that as well. As far as the degree is concerned, anyone with 4 years of bachelor's with 60% percentage in their marks is accepted. Anyone with 2 years of bachelor's and 2 years of master's with an aggregate of 55% is also accepted. As an exception, 3 years of bachelor's, which is offered by Karachi University only, I guess. 3 years of bachelor's with 1 year or 2 years of master's is also accepted. And on top of that, the best offer that we have at University of Hull London campus is anyone with 2 years of bachelor's, which means 14 years of education, is also accepted directly into master's degree. However, the only catch is that with that degree, you are supposed to have at least 5 years of managerial experience, where you have either led a team, or you have made the strategic decisions, or you have worked with a larger team in a managerial role. So if you have 5+ years of experience with only 14 years of education, which means simple BA, BCom, BSc, or BBA, you can also be accepted directly into master's degree, any of these degrees, but apart from AI and data science, because AI and data science is not a conversion course. You have to have a background of programming or computer science in order to apply for AI and data science. But apart from that, all 4 courses are conversion courses, and anyone with any background is accepted for that. Yeah, Ahmed? जी जी सर, हमारे पास ज्यादातर स्टूडेंट आते हैं या हम इनकाउंटर करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसकी अगर डिग्री 14 ईयर्स है, जो कि बीए या बीएससी के इक्विवेलेंट है, प्लस उसके साथ हमारे पास 5 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो ज्यादातर हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं, कभी-कभी ये रेलेवेंट फील्ड में होता है, लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इतनी बड़ी कंपनी में नहीं होता, लेकिन रेलेवेंट फील्ड में होता है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं? हाँ, देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि उसकी जो पोजीशन है, जिस पोजीशन पे उसने काम किया हुआ है, वो मैनेजरियल पोजीशन होनी चाहिए। क्योंकि एनीवन विद 5 years of experience with managerial role, जिसमें उसको मैनेज करना आता है, जिसमें उसको स्ट्रेटजी बनानी आती है, जिसमें उसको टीम को लीड करना आता है, अगर ये चीजें उसके अंदर हैं, then he can be accepted, because that student will add value to the class when he sits there.
That's why we are accepting the student with 14 years of education, लेकिन उसके पास मैनेजरियल रोल का एक्सपीरियंस हो। ओके सर, और हमारे पास जो ये छोटा है एआई डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डेटा साइंस, इसमें हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट आते हैं जिसकी प्रोफाइल मतलब कंप्यूटर साइंस हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, या इसके अलावा हमारे पास ये मैनेजमेंट की तरफ से या बिजनेस की तरफ से, तो ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उसमें प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को दी जाएगी? देखिए, जो एआई एंड डेटा साइंस है ना, उसमें प्रोग्रामिंग जैसे सी प्लस प्लस कोई लैंग्वेज की हो, कंप्यूटर लैंग्वेज, या प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस हो, या इसी रोल में काम कर रहा हो बच्चा, या फिर उसका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो, जब भी कोई ऐसा बच्चा अप्लाई करता है, अगर वो क्राइटेरिया पे फिट बैठ रहा होता है तो उसको स्ट्रेट अवे ऑफर आ जाती है। अगर नहीं आती तो फिर उसकी एप्लीकेशन को हम डीन को रेफर कर देते हैं, और अगर डीन देखता है कि उसके पास रेलेवेंट बैकग्राउंड ऑफ प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस है तो वो उसको अप्रूव कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है, डीन अप्रूवल। यस सर, बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पर जो बैचलर डिग्री होती है उसमें तकरीबन हम 46 से 47-48 तक सब्जेक्ट या कोर्सेज पाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक ऐसा कोर्स आ जाता है जो डेटा साइंस से रिलेटेड, आईटी के रिलेटेड हो। जिस तरह हमारे पास आईसीटी हो गया, तो ऐसा जो सब्जेक्ट आते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे जो मॉड्यूल है या हमारे जो कोर्स है हम बैचलर पढ़े हुए ये इसके साथ रिलेट है, मतलब एक ही डोमेन में आते हैं। हाँ, देखें, अगर तो उन्होंने अगर वो क्राइटेरिया स्ट्रेट अवे मीट कर रहे हैं फिर तो ठीक है, और उनके पास जो भी डिग्री है या कोई डिप्लोमा है या कोई रेलेवेंट बैकग्राउंड है, तो उसको अगर आप प्रूफ साथ अटैच कर देंगे तो वो जरा स्ट्रेंथन हो जाएगा आपका केस। और अगर हम डीन को रेफर करेंगे तो डीन को अगर वो सारी चीजें नजर आती हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अप्रूव कर देगा इस केस को। ओके सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है जो ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कि व्हाई लंदन, या हाउ इज द लंदन कैंपस डिफरेंट फ्रॉम द मैन कैंपस? मैं आपको बताता हूँ। मेन कैंपस में ये होता है कि एक तो वो बहुत अवे है, वो हल सिटी में है जहां पे आपके पास नेटवर्किंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, लंदन जो है इट्स अ हब, पूरे यूरोप का कमर्शियल हब है, ठीक है। Yes. और मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो तमाम लोग जो वहां जाके कहते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है और यहाँ पे सैचुरेशन हो गई है, वो सब झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज एवरीवन शेयर्स देयर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है ना। Yes, sir. अगर एक ऐसा बच्चा जो जाता है और बिजनेस मैनेजमेंट के एक जेनेरिक कोर्स के अंदर रिक्रूट होता है और पूरा साल पढ़ाई के साथ साथ सिक्योरिटी की जॉब करता है, या वो जॉब करता है पिज्जा डिलीवरी की या इस तरह की और जॉब्स करता है, तो उसके CV पे कोई लोकल एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जहां भी वो जाएगा उसको जॉब नहीं मिलेगी। और अगर बच्चा जो है वो एक ऐसी डिग्री में जाता है जैसे लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, एआई एंड डेटा साइंस की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। ऐसी डिग्री में आपको एनरोल करना चाहिए और उसके साथ साथ आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करते रहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यू हैव क्लासेस ओनली ट्वाइस अ वीक। पूरे वीक के अंदर आप सिर्फ 2 दिन कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और बाकी 5 दिन आपके पास हैं। नाउ इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू अर्न मनी इन दोस 5 days with odd jobs, that's up to you. Then don't complain that there's no job available for you. But if you gain relevant experience during that job, during the studies, and you do some internships which are even free, but those internships will add value to your CV. So when you are done with your degree and you start applying for PSW and start applying for the job, they will always see what you've done in the local industry. So you should get local experience just so that you can get a good job. That's why London campus is always more lucrative for students because it offers a lot of opportunities for networking. अब जहां पे आपका कैंपस है, ब्लूम्सबेरी स्क्वायर, that is called the academic hub of London. किंग्स कॉलेज भी वहीं पे है, सोएस भी वहीं पे है, बर्कबैक भी वहीं पे है, और इसका मतलब है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो आपसे डबल फीस दे के पढ़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी विसिनिटी में होंगे, वो सेम जिम में जाएंगे, वो वहां पे जितने भी कैफेज हैं वो भी आपको वहां पे मिलेंगे। सो इट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ नेटवर्किंग। आपको चाहिए कि वहां पे आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड करें, मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स बनाएं जो कि आपको आगे जाके आपके काम आ सके। तो अपना वक्त बर्बाद किए बगैर, वक्त जाया किए बगैर, आपको चाहिए कि आप मीनिंगफुल इंटर्नशिप्स करें और नेटवर्किंग करें ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लंदन। और लंदन कभी भी सैचुरेट नहीं होता, हमेशा वहां पे छांटी होती रहती है। वो तमाम लोग जो कॉम्पिटेंट होते हैं वो वहां टिक जाते हैं, और जो कॉम्पिटेंट नहीं होते वो वहां से वापस आ जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो इसलिए there's always opportunity for the right people. जैसा मतलब लंदन में जो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट जाते हैं या इस कैंपस में जाते हैं तो ज्यादातर हमारी प्रायोरिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। ज्यादातर बच्चे भी ये कहते हैं कि हमें कोई मतलब पहले दिनों में जॉब की फिक्र नहीं होती, लेकिन हम वहाँ पर अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, मतलब लाइफ जो लॉन्ग कैरियर है वहाँ बनाना चाहते हैं। जिस तरह आपने बताया कि हमारे पास जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं या इसके हमारे पास प्री इंटर्नशिप होते हैं, तो हमें एकेडमिकली प्रोफेशनल लाइफ में वो आगे ले जा सकते हैं, तो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। बजाय से कि मतलब ये जो हमारे पास छोटे काम होते हैं इनिशियल स्टेज में स्टडी के साथ थोड़े बहुत करने चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी एकेडमिक या प्रोफेशनल जो हमारी कैरियर है उस पर देनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो
एसडब्ल्यू उसमें भी हमें मौका मिलता है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़े किसी इदारे में हम रिक्रूट हो सकते हैं। ओके सर, काइंडली इन्फॉर्म करें हमें कि एप्लीकेशन जिस तरह हम एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं उसके बाद हमारे पास वो कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन से मराहिल होते हैं जिससे एक स्टूडेंट को गुजरना होता है, या वो कौन-कौन सी चीजें जिसको पहले से उसको प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, क्योंकि अनकंडीशनल ऑफर जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका एसओपी, आपका पासपोर्ट, आपका सीवी और आपके कोई भी वर्क रेफरेंस लेटर जो है वो साथ अटैच करके फिर आप एप्लीकेशन लॉन्च करें, ताकि आपकी मैक्सिमम कंडीशंस मीट हो जाए और आपको अनकंडीशनल ऑफर आ जाए। जब वो आ जाता है तो उसके बाद हमने 2 इंटरव्यूज रखे हुए हैं। एक होता है रीजनल इंटरव्यू, जो कि मैं लेता हूँ, ठीक है, Yes, sir. या फलक लेते हैं। वो शॉर्ट इंटरव्यू होता है, उसके लिए वो सब स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। तो एनी स्टूडेंट हु, मैं आपको बताता हूं 3 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की जिनके कंप्लायंस इंटरव्यू होते हैं। नंबर 1, इफ द स्टूडेंट इज फ्रॉम हाई रिस्क रीजन। हाई रिस्क रीजन में आ जाता है हमारा केपीके, मंडी बहाउद्दीन, साहिवाल, शेखुपुरा और उसके अलावा चिन्योट, इस तरह स्वाबी, मर्दान। ये हाई रिस्क रीजन है। यहां से अगर बच्चा बिलोंग करता है या उसके पासपोर्ट पे इनमें से किसी सिटीज को मेंशन किया गया है, तो फिर उसका कंप्लायंस इंटरव्यू जरूरी होगा, ठीक है। कंप्लायंस इंटरव्यू होता है जो यूके टीम लेती है और वो थोड़ा सा लेंथी इंटरव्यू होता है। दूसरे केस में अगर बच्चे का वीजा रिफ्यूजल है किसी और कंट्री का, तो वो उसको मेंशन करना चाहिए अप्लाई करते वक्त, बिकॉज हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका इंटरव्यू जरूर होगा, कंप्लायंस इंटरव्यू। अगर वो कंप्लायंस इंटरव्यू थ्रू कर जाता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ही और शी कैन प्रोसीड। थर्ड होता है कि अगर आपका जो स्टडी गैप है वो 10 साल से ज्यादा का है। अगर 10 साल से कम है, अगर आप लो रिस्क रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आपका कोई वीजा रिफ्यूजल नहीं है, तो आपका सिर्फ रीजनल इंटरव्यू होगा 15 मिनट का। और अगर आप में इन तीनों में से कोई भी जो चीज है उसमें फॉल कर रहे हैं, तो फिर आपका कंप्लायंस इंटरव्यू होगा, जो कि कोई 40 मिनट का होता है और वो यूके की टीम लेती है। जब आप वो इंटरव्यू भी थ्रू कर लेते हैं, रीजनल इंटरव्यू या कंप्लायंस इंटरव्यू थ्रू कर जाते हैं, फिर आपको चाहिए कि आप, क्योंकि आप इंटरव्यू जो है उसके लिए आपका फी पे करना जरूरी है। हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो हाई लंदन के लिए 6350 है, 6350। और उसके बाद आपने टर्म 2 के शुरू होने से पहले पहले तक, यानी एनरोलमेंट से लेके टर्म 2 शुरू होने से पहले तक आपने 2000 पाउंड और देना होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप यहां से 8350 पे करके जाएं, 8350 आप दे देंगे, आपको कैश भी मिल जाएगा और वहां जाके आपको एनरोलमेंट पे कुछ नहीं देना पड़ेगा। फिर आपको जो बाकी फीस है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी होगी, एक टर्म 2 के शुरू में और एक टर्म 3 के शुरू में। That's about it. यस यस सर। सर हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं जो लंदन में जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो लंदन कैंपस में एक यूनियन है स्टूडेंट्स का, उससे ये कौन से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ से कोई बंदा वहाँ यूके जाता है, क्योंकि वहाँ उसके लिए कल्चर, उसका एनवायरनमेंट, उसकी लैंग्वेज सब कुछ चेंज होता है, तो इनिशियली वो कौन सी स्टेजेस है या वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें वो वहाँ सर्वाइव कर सकता है, या वो यूनियन जो हमारे पास मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मेन कैंपस का, तो वो कौन सी मतलब वो अपॉर्चुनिटीज को मुहैया कर सकती है। देखिए, वैसे तो सारे बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क करके जाते हैं यहाँ से, एंड दे आर ऑलवेज इन टच विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी देयर। उसके अलावा ये है कि व्हेन यू गेट एट द कैंपस, तो हमारी जो अकोमोडेशन फैसिलिटीज हैं वो भी अवेलेबल हैं, और वो मेरा ख्याल है कि अहमद आपके पास भी अवेलेबल होंगी। अगर नहीं है तो प्लीज यासिर से राब्ता करें। हमने आपको बताया हुआ कि जो कैंपस की फैसिलिटीज हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटीज, वो आपके पास अवेलेबल होती हैं और आप उनको बुक कर सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ से जाने से पहले अकोमोडेशन भी बुक कर ले, जो कि कैंपस के आसपास ही होती हैं। और उसके अलावा जब आप कैंपस पे जाते हैं तो हर 10 बच्चों के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स इंस्ट्रक्टर होता है, जो कि उनके साथ डेडिकेटेडली काम करता है डे 1 से। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपने कहीं इंटर्नशिप करनी है या आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप उसको बता सकते हैं और वो आपके लिए मुहैया करेगा या आपको गाइड करेगा उसके लिए। सर हमारे पास ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसके प्रोफाइल कभी-कभी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती या फिट नहीं होती, या कभी-कभी किसी भी स्टूडेंट का वीजा रिजेक्शन होता है किसी दूसरे मुल्क का या खास यूके का, उसके प्रोफाइल पर कोई असर होगा। जिस तरह आपने बताया कि लंदन में कैंपस जो है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हम उसको रिक्रूट करते हैं डब्ल्यूएस के बाद। मैंने आपको बताया कि अगर आपका वीजा रिजेक्शन किसी और कंट्री से है और उसकी रीजन फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह की फोर्जरी नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर आपने सिर्फ एक कंप्लायंस इंटरव्यू पास करना है। अगर वो कंप्लायंस इंटरव्यू पास कर लेंगे, अपने जो रिजेक्शन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर लेंगे, फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दैट यू हैव गिवन अस। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. Thank you very much for having me. थैंक यू।